Afternoon class. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. 4-5 मिनट लेट हो गया, 7 मिनट, क्योंकि इसके पहले का क्लासेस था, लगातार क्लास था, लंबा बैच था, उसमें अटेंडेंस वगैरह लेना था, इसलिए। लास्ट क्लास में क्या हुआ था बाबू? सर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट खत्म हो गया सर। मार्जिनल Sir, प्रोडक्ट आपने करवाया relationship था। between Relationship between total product and marginal product. margin. Yes, sir. उसका ग्राफ बनवाए थे सर। 2 पॉइंट हुआ था, पहला और दूसरा में ग्राफ बना हुआ था। शाबाश। 2 ही पॉइंट हुआ था इसमें क्या? यस सर। Yes, sir. 2 ही पॉइंट हुआ था और कर्व बनाए लास्ट में। सर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप आपने बताया था, और टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप। टोटल प्रोडक्ट का अंकित, तुम हमको पूरा चीज बताया करो। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में लास्ट में हम लोग क्या लिख रहे थे? लास्ट में शेड्यूल ऑफ कर्व हम लोग बनाए थे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। यस सर, कर्व बनाए थे, उसके बाद कल लिखे नहीं थे। यस सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। 1 मिनट और देख लेते हैं बच्चों का, वेट कर लेते हैं, अगर बच्चे लोग आएंगे तो। वैसे हमको लगता है कि आज तो ज्यादा ही लोग आ गए हैं, इससे ज्यादा लोग अब शायद ना आए। यस सर। चलो लिखना स्टार्ट करो। यस सर। When MP curve is rising, when MP curve is rising, or is having a positive slope, or is having a positive slope, comma, the total product curve, the total product curve is rising but at an increasing rate, is rising but at an increasing rate. Full stop. Next point. Increasing. Increasing rate, R-A-T-E, increasing rate. Full stop. The point where MP curve is at its maximum. Next point here. The point where MP curve is at its maximum comma, corresponds to a point on TP curve, corresponds to a point on TP curve up to which the TP is rising at an increasing rate, up to which the TP is rising at an increasing rate. Full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा। This point is known as point of inflection, point of inflection, INFLUXTION, inflection, point of inflection. तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आपका जवाब क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो टीपी कर्व पे होगा और उस पॉइंट तक टीपी राइज करता है। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से राइज करता है। किस रेट से राइज करेगा? इंक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। The falling part of MP curve, the falling part of MP curve
मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. The falling part of MP curve or the negative slope of MP curve or the negative slope of MP curve shows that part of the TP curve which is rising but at a decreasing rate. Full stop. Next point लिखिएगा. The point where MP curve touches the x-axis, the point where MP curve touches the x-axis to become zero, Sir, repeat please. point where MP curve touches the x-axis to become zero. Camera on करो पहले. The point where MP curve touches the x-axis और कैमरा तुम लोग का ऐसे क्यों है? वर्टिकल मोड एक ही चीज को बार बार क्यों बुलवाते हो तुम लोग? तुम लोग एकदम केयरलेस हो, सुनना मतलब समझना नहीं चाहते हो. मोबाइल फोन ऐसे रखो, ऐसे. हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे होता है. जिसने अभी मुझसे पूछा सर रिपीट, तुम्ही को मैं बोल रहा हूं, तुम भी क्लास में हो, तुम्हारा भी फोन ठीक नहीं है. फोन ठीक करो पहले. फोन वर्टिकल मत रखो, फोन ऐसे रखो, हॉरिजॉन्टल. और किसी का फोन बंद नहीं होना चाहिए, ऑफ. क्या लिख रहे थे बोलो? The point where Roll number MP 10. curve is Roll number 10. Yes, sir. क्या लिख रही थी, पढ़ो. The point where MP curve touches the x-axis is to become zero. Zero, comma, corresponds to a point on TP curve, corresponds to a point on TP curve where TP is at its maximum. Where TP is at its maximum. जहां पे TP अपने मैक्सिमम पर है. लास्ट में पॉइंट लिखिएगा, लास्ट पॉइंट. That part of the MP curve, which is below the x-axis, gives negative value to MP, and represents that part of the TP curve which is
falling from its maximum, which is falling from its maximum. Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो. Sir, that part of के बाद क्या था? That part of the TP curve, that part of the TP curve which is falling from its maximum. अब आइए इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा टीपी और एमपी के रिलेशन को. क्योंकि मुझे कर्व बनाना है इसलिए मैं मोबाइल को वर्टिकल फॉर्म में मोड में रख रहा हूं. एक्स एक्सिस पे आप लेबर को लिखेंगे हमेशा की तरह, और एक्स वाई एक्सिस पे आप टीपी और एमपी को लिखेंगे. ये टीपी कर्व है और ये हमारा एमपी कर्व है. क्या लिखा हम लोगों ने कि जब एमपी पॉजिटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप कहने का मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा. सुनिएगा ध्यान से, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा तो वो टीपी कर्व के उस हिस्से को शो करेगा जहां पे टीपी राइज तो करेगा, लेकिन किस रेट से राइज करेगा? इंक्रीजिंग रेट से राइज करेगा. Increasing rates. अब मेरे सामने ये सवाल होगा कि आखिर टीपी कर्व इंक्रीजिंग रेट से कब तक राइज करेगा, किस पॉइंट तक, कैसे समझेंगे कि यहां तक टीपी राइज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से? तो मैंने इसका भी जवाब लिखाया, जहां पर एमपी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट होगा. देखिए एमपी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट दिख गया. यस सर. वो पॉइंट जब आप मिलाएंगे टीपी कर्व पे, किस पे मिलाएंगे? टीपी कर्व. TP curve पे. तो जिस पॉइंट पे वो टीपी पे जाके मिलेगा वहां तक टीपी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, और इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ Inflection. इन्फ्लेक्शन. क्लियर है क्लास? यस सर. Yes, sir. अब क्या हुआ? अब आप देखिए ये जो हमारा टीपी कर्व है, वो सॉरी एमपी कर्व, वो फॉल करने लगा अपने मैक्सिमम से, यानी कि इसके नेगेटिव स्लोप को. तो जब एमपी कर्व फॉल कर रहा है तो ये क्या शो करेगा कि टीपी कर्व अब इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद राइज करेगा, लेकिन किस रेट से राइज करेगा? डिमिनिशिंग रेट से राइज करेगा, डिक्रीजिंग रेट से राइज करेगा. क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है. अब आगे देखिए, जहां पे एमपी कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पे एमपी का वैल्यू 0 हो गया. एमपी का वैल्यू 0. 0. लेकिन अगर आप इस पॉइंट को मिलाएंगे कहां? ऊपर टीपी पे, तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां पे टीपी अपने मैक्सिमम पे होगा. टीपी किस पे होगा? अपने मैक्सिमम पे. Maximum पे हो. मैक्सिमम पर. अब लास्ट में क्या लिखा हम लोगों ने? जब एमपी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, यानी कि एमपी का वैल्यू माइनस में आ गया. एमपी का वैल्यू किस में आ गया? माइनस में आ गया. एमपी का वैल्यू माइनस. तो ये क्या शो करेगा? टीपी कर्व के उस हिस्से को शो करेगा जहां पे टीपी अपने मैक्सिमम से फॉल कर रहा है.
Is it clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. No, sir. ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मल्टीपल कलर अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ? Yes, sir. Yes, अच्छा लग sir. रहा है। Yes, sir. अब क्या है, अब आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को पढ़ेंगे बाबू। लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ का नाम? लॉ ऑफ वेरिएबल Variable प्रोपोर्शन। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स को सुनना है और समझना है, दिमाग में रखना है। क्या है कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, इसका दो और नाम है। कितना नाम है इसका? दो और नाम। इसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लॉ Law of ऑफ return रिटर्न टू फैक्टर। इसका दो नाम है। पहला नाम है लॉ ऑफ proportion. रिटर्न टू फैक्टर और दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कितना नाम है इसका? दो दो नाम। नाम सर। लॉ ऑफ रिटर्न Yes, टू sir. फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये दो नाम है इस लॉ का। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझना है कि भाई ये जो लॉ है ना, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होगा, ये लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होता। Yes, sir. ये आपने law बताया था, sir. हमेशा शॉर्ट रन में लागू होगा, ये लॉ कभी भी लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है? Yes, हम sir. लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस। सर पढ़े इसमें कि तो नहीं पढ़े हैं? तो इसमें एक लॉ और इंक्लूड होगा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर सर। नहीं तो अंकित, यस सर। ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का तीन सब लॉ है। लॉ ऑफ Yes, sir. इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। निगेटिव। यस सर। ठीक है, तो वो Yes, sir. तीनों लॉ इसी का पार्ट। तो आपको जो समझना है वो ये समझना है कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है? शॉर्ट रन के लिए। Short run के लिए। किसके लिए अप्लाई होगा? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के लिए। अब Short run के शॉर्ट रन में आप कितना इनपुट यूज करते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट यू आर सर यूजिंग? दो सर, टू इनपुट, फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट सर। वेरी गुड अंकित, फिक्स्ड इनपुट भी आप यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं? दूसरा वेरिएबल इनपुट। Variable input. वेरिएबल इनपुट, यानी कि शॉर्ट रन में आप दो तरीके का इनपुट यूज करेंगे। एक हो गया फिक्स्ड इनपुट और दूसरा हो गया वेरिएबल इनपुट। ठीक है, यस सर। मतलब कि अगर आप शॉर्ट रन कह रहे हैं तो शॉर्ट रन तभी होगा जब वहां पे फिक्स्ड इनपुट होगा। अगर फिक्स्ड इनपुट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो शॉर्ट रन होगा ही नहीं, वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नहीं होगा। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट होने के लिए फिक्स्ड इनपुट होना होना चाहिए। कंपलसरी है। जरूरी है। तो अब ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या करता ना, ये हेल्प करता है किसको? हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू आइडेंटिफाई, ठीक है, यस सर। an ideal mix of or ratio of
fixed input and variable input. मतलब क्या हुआ? ये जो रेशियो है ये हेल्प करता है किस चीज को फाइंड आउट करने में, कि भाई प्रोड्यूसर जो है वो फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट का जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट का, मतलब फिक्स्ड इनपुट के मुकाबले हमारे पास कितना वेरिएबल इनपुट होगा ताकि हम लोग अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। इसको जानने के लिए ये लॉ बनाया गया। वो आइडियल मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट को जानने के लिए हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बनाते हैं। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्या है आगे कि आखिर ये लॉ कहता क्या है? व्हाट द लॉ सेज? लॉ कहता है कि आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूमिंग का मतलब मानना। अज्यूमिंग टेक्नोलॉजी to remain constant. Assuming technology to रिमेन कांस्टेंट। remain constant. ठीक है, आगे at a given time and place. ये आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। और क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट तो शुरुआती दौर में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो वो फॉल करेगा ही करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? फॉल करेगा। हेलो, Yes. यस सर। Yes, sir. क्या कहा मैंने? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को में आपको एज्यूम क्या करना है? टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना है एट ए गिवन टाइम और प्लेस। टाइम और प्लेस पे भी क्या कह रहा है? जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जाएंगे क्या होगा? आउटपुट शुरुआती दौर में बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बढ़ना बंद हो जाएगा और वो फॉल करने लगेगा। वो क्या होगा? फॉल करना। कल करने लगेगा। अगर आपको याद होगा जो हम लोगों ने टीपी कर्व बनाया था, तो उस टीपी कर्व में मैंने क्या लिखवाया था कि अगर ये हमारा टीपी कर्व है तो इस टीपी कर्व में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक हमारा टीपी कर्व बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद ये बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन जब ये अपने मैक्सिमम पे आ गया इसके बाद ये अब यहां से घटना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? इसमें आपको टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, फिक्स्ड मानना पड़ेगा एट अ गिवन टाइम और प्लेस। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट की संख्या बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट शुरुआती दौर में बढ़ेगा, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, लेकिन फाइनली क्या होगा? अगर ये बढ़ता भी है तो ये मतलब अब बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके बाद भी अगर आप इनपुट को बढ़ाएंगे तो अब ये टोटल प्रोडक्ट आपका अपने मैक्सिमम से घटना शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो लॉ है
इस लॉ को हम लोग 3 डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ सकते हैं। दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन अंडर 3 डिफरेंट स्टेजेस। मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं, आप लोग पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा तो। पॉइंट वाइज एक हेडिंग दे दीजिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखिएगा। पहला पॉइंट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन is also known as the law of return to factor, the law of return to factor, and the law of diminishing marginal return, and the law of diminishing marginal return. Full stop. Next point. देखिए, this law is applicable, this law is applicable only in the short run. This law is applicable only in the short run. Full stop. It implies that the law makes use of two types of inputs, makes use of two types of inputs. हाइफन दे दीजिएगा, fixed input and variable input, fixed input and variable input. Full stop. Next point. The law helps a producer, the law helps a producer to identify an ideal mix of fixed and variable inputs. Fixed and variable inputs. Full stop. Fixed and variable inputs.
Full stop. This will help the producer. This will help a producer to optimize the use of resources, to optimize the use of resources and get the maximum output. And get the maximum output. Full stop. Next point. Assuming the technology to remain constant, assuming the technology to remain constant, comma, at a given time and place, comma, the law of variable proportion, the law of variable proportion states that as the output, as the variable inputs are increased, as the variable inputs are increased, म्यूट कर लो अपने आप को जो भी है, as the variable inputs are increased, comma, the total product initially rises at an increasing rate, comma, then at a diminishing rate, but ultimately it starts to fall. Repeat, sir. But ultimately it starts to fall. Full stop. Paragraph change कीजिएगा. The law of variable proportion, can be explained, the law of variable proportion can be explained with the help of different product schedules and curves under three different stages.
under 3 different stages. Full stop. The three different stages are hyphen दे दीजिए. Point number 1, stage 1 डैश देके लिखिएगा. Law of increasing return to factor. Law of increasing return to factor. Law of diminishing return to factor. Law of diminishing return to factor. और नंबर C या 3 जो भी लिख रहे होंगे, स्टेज 3, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर. लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर. फुल स्टॉप. अब आगे का जो होगा इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यस सर. Yes, sir. यस सर. अब तुम लोग फटाफट हमको सबको फटाफट अटेंडेंस बोलते जाना, और जिसका हो जाए वो लीव कर जाना, और जो बच जाएगा वो रिज्वाइन कर लेना. रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर. 2 3 4 प्रेजेंट सर. 5